Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the structure of DNA. So, let us recall some of the salient features of the DNA structure. The very first important thing is that the DNA is a double-stranded structure and there are two polynucleotide chains. These two polynucleotide chains have sugar and the phosphate as the backbone, and the bases will be protruding inside. So backbone of the DNA is made up of sugar and phosphates, okay, and there will be bases which will be protruding inside. Secondly, the two strands of the DNA are anti-parallel to each other. That is, one runs from 5' to 3', whereas the another one runs from 3' to 5'. Third thing, the two strands of DNA will be having the nucleotides which will be, that is, bases will be purines and the pyrimidines, where adenine will be linked or hydrogen bonded to thymine and guanine will be hydrogen bonded to cytosine. There will be presence of two hydrogen bonds between adenine and thymine and three hydrogen bonds between guanine and cytosine. The distance between the two nucleotides, or you can say two base pairs, is going to be 0.34 nanometer. The distance is going to be 0.34 nanometer. That is the distance between two base pairs. Okay. The helix, or you can say one pitch or one turn of DNA, this one single turn of DNA will be of 3.4 angstrom, and there will be 10 bases or you can say 10 base pairs in each turn. There will be 10 base pairs in each turn. So these are some of the very specific characters of the DNA structure. There are two polynucleotide chains. Sugar and phosphate will form the backbones. Bases will be protruding inside. Third thing that will be important is that there will be the adenine will be linked to thymine, guanine to cytosine, 2 and 3 hydrogen bonds, as we said, right? These are some of the characteristic features of the DNA structure which we have already discussed. Distance between the two strands of the DNA was 20 angstrom. One single helix, one turn of DNA was 34, that is 3.4 nanometer, and in this way there will be different dimensions of the DNA structure that we have discussed so far. Now we are moving on to the next topic, that is the packaging of the DNA. Now पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्टडी करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंटली समझ लेनी पड़ती है जिसे कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा मतलब एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है, राइट, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, वो सब होती है किसके पास? डीएनए के पास. डीएनए गेट्स ट्रांसक्राइब्ड टू आरएनए. डीएनए गेट्स ट्रांसक्राइब्ड टू आरएनए and RNA is translated to form the proteins. मतलब हमारे या कोई भी एनिमल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या है? DNA to RNA and RNA to protein. ये एक सीक्वेंस है जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो होती है. पूरी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, उसकी एक कॉपी जो है, एक छोटी सी कॉपी बनती है जो होती है आरएनए, और आरएनए से फिर आगे जो ट्रांसलेशन होता है और तब बनता है प्रोटीन. तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. सिर्फ और सिर्फ वायरसेस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, सिर्फ उन्हीं के केस में आरएनए से डीएनए बनता है, राइट. Otherwise, in all the cases, DNA to RNA and RNA to proteins, the flow of information is unidirectional. Flow of information is unidirectional, and that is very important contribution by the researchers about the central dogma. We will also discuss about the central dogma later on further in the classes. Let us now begin with our topic, that is packaging of the DNA.
ठीक है। तो अगर हम डीएनए के पैकेजिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें समझना इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिस होते हैं, राइट, टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं। अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो द टोटल bases present in a DNA of human cell is 6.6 into 10 raised to 9, राइट। इतने बेसिस प्रेजेंट है। हमें ये चीज पता है कि कितने बेसिस होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बेसिस दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल, मतलब हमारे सेल की बात कर रहे हैं, और वो भी किसमें, सिर्फ एक सिंगल डीएनए में, ठीक है। कितने बेसिस हैं, 6.6 into 10 raised to 9 बेसिस है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द two base pairs, the distance between the two base pairs is going to be 0.34 nanometer, right? It is going to be 0.34 nanometer, या हम कह सकते हैं 0.34 into 10 raised to -9 मीटर, ठीक है, पर बेस पेयर। तो ये जो है ये डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, दो बेसिस का। मैंने क्या कहा कि एक जो हेलिक्स है, इस एक हेलिक्स में कितने बेसिस होते हैं, एक हेलिक्स मतलब 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अब 3.4 नैनोमीटर का एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। तो सिंपली आप डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा कि दो बेसिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 0.34 नैनोमीटर, राइट। सिंपली हमने क्या किया, 3.4/10, इसलिए हमें मिल गया कि 0.34 नैनोमीटर जो है वो बेसिस के बीच में डिस्टेंस है। तो अगर हमें लेंथ जाननी हो, इफ यू वांट टू नो द लेंथ ऑफ द डीएनए, तो हमने क्या कहा था, लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट and the distance between them. So total length of the DNA क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.6 into 10 raised to 9 multiplied by 0.34 into 10 raised to -9, and you will get the value nearly 2.2 meters. क्या मिलेगी वैल्यू, 2.2 meters. अब ये जो लेंथ हुई वो तो न्यूक्लियस के साइज से काफी बार ज्यादा है, बिकॉज साइज ऑफ न्यूक्लियस की साइज कितनी है, तो न्यूक्लियस की जो साइज है वो साइज तो हार्डली 10 raised to -6 एंगस्ट्रॉम है। अब इतनी छोटी साइज में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को अगर अंदर डालना है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा डीएनए का। डीएनए एज इट इज थ्रेड लाइक नहीं रह सकता, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी है, और इतने छोटे न्यूक्लियस में डीएनए को एडजस्ट करना ऑब्वियसली इट विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। इसीलिए डीएनए को क्या करना पड़ता है, कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, पैकेज करना पड़ता है, कंडेंस करना पड़ता है, तब जाके इट इज गोइंग टू गेट एकोमोडेटेड विद इन द न्यूक्लियस, राइट। चलो प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स लाइक इकोलाई, ठीक है, इकोलाई जैसे प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, लैक membrane bound nucleus, ठीक है, but the DNA is not scattered, instead it is associated with non-histone
proteins to form न्यूक्लियोइड। क्या लिखा है मैंने कि चलो हम यूकैरियोट्स की तो बात करते हैं कि यूकैरियोट्स में मान लीजिए डीएनए तो बहुत ही ज्यादा लंबा है 2.2 मीटर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर नहीं रहता। इंस्टेड इनका जो डीएनए है दैट गेट्स एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन एज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और पॉलीअमाइन्स, और इनके साथ एसोसिएट होके ये एग्रीगेट बना लेते हैं और इस एग्रीगेट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो पैकेजिंग जैसा कुछ तो प्रोकैरियोट्स में भी हो रहा है, राइट। दे डोंट हैव स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस but still their genetic material is not randomly scattered. Instead, it will be associated with the proteins which will keep this all genetic material together. और उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या होगा केस, in eukaryotes this organization is going to be more complex, right? So in eukaryotes, the organization, or you can say packaging, is more complex and involves basic proteins which are known as histones. क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। पैकेजिंग के लिए मतलब डीएनए के कॉइलिंग के लिए एक और प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे उसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं दे आर हैविंग बेसिक एमिनो एसिड्स, दे कंसिस्ट ऑफ बेसिक amino acids like lysine and arginine, और इसी की वजह से histones are positively charged, right? क्या हुआ है कि यूकैरियोट्स जो है उनमें डीएनए के पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एक प्रोटीन है जिसे कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है उसका चार्ज किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के एमिनो एसिड्स उसमें है, राइट। जिसमें पॉजिटिव मतलब पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होगा, नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड्स होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होगा। पर हिस्टोन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, और वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक एमिनो एसिड से बना गया है जो है लाइसिन और आर्जिनिन। इनके प्रेजेंस की वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स का कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब डीएनए जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, और इसीलिए नेगेटिवली चार्ज डीएनए गेट्स अट्रैक्टेड एंड गेट्स कॉइल्ड ओवर द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए गेट्स कॉइल्ड ओवर पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन। एक्चुअली हिस्टोन जो है इट इज एन ऑक्टामर। हिस्टोन इज ऑक्टामर मतलब कितने प्रोटीन से, 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ एक प्रोटीन है। 8 मॉलिक्यूल से बना हुआ एक प्रोटीन है, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है प्रोटीन में, तो यहाँ पे ऐसी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 8 पॉलीपेप्टाइड चेन्स टुगेदर फॉर्म वन सिंगल मॉलिक्यूल। तो अगर ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, राइट, अगर ये एक हिस्टोन प्रोटीन है तो इनपे डीएनए जो है दैट इज गोइंग टू बी कॉइल्ड लाइक दिस, राइट। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए that is going to be coiled on the histone protein. It is going to be coiled
on the histone protein and this structure is known as न्यूक्लियोसोम। इस एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम, जिसमें डीएनए के अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स कवर हो जाते हैं। मतलब एक मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है जिसपे डीएनए जो है वो वाइंड हो गया है, और एक बार जब ये वाइंड हुआ, राइट, तो एक टर्न पूरा होगा और दूसरा टर्न जो है वो 3/4, एक पूरा टर्न और एक 3/4, इतना करने में 200 बेस पेयर्स जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और इस पैक्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम। अब ऐसा एक न्यूक्लियोसोम तो होगा नहीं, न्यूक्लियोसोम विल बी प्रेजेंट लाइक दिस, राइट, देयर विल बी 1 2 3, और सब पे अगर डीएनए ऐसे कॉइल्ड होगा तो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, राइट, एक पे टर्न लेके आगे, एक पे टर्न, तो ऐसे जो होगा उससे क्या होता जाएगा? कंडेंस होता जाएगा, राइट। सो हियर द न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। मतलब अगर न्यूक्लियोसोम की ये पैटर्न कंटिन्यू रही, ये तो एक है, राइट, फिर कंटिन्यू होके दूसरा न्यूक्लियोसोम, फिर कंटिन्यू होके तीसरा न्यूक्लियोसोम, तो ये जो डीएनए इनिशियली जो ऐसा था थ्रेड लाइक, राइट, उससे क्या हो गया? अब ये ज्यादा कॉइल हो गया, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया है, और इस स्ट्रक्चर को, थोड़े कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? क्रोमेटिन, राइट। इसे क्या कहा जाएगा? क्रोमेटिन। इट विल appear as beads on string. How it is going to appear? Beads on string. तो ये एक string है जिसके ऊपर बीच बीच में न्यूक्लियोसोम्स जो है they are going to appear as beads present on the string, right? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा अभी कॉम्पैक्ट होगा तो क्रोमेटिन से बनेगा मोर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। ज्यादा कंडेंस होगा तो क्या बनेगा? क्रोमेटिन फाइबर। एंड फर्दर इन मेटाफेज ये क्या बन चुका होगा? क्रोमोसोम, राइट। मतलब यहां पे कहने की चीज ये है कि एक डीएनए है वो हिस्टोन पे एक बार कॉइल हुआ तो न्यूक्लियोसोम बना। ऐसे बहुत से न्यूक्लियोसोम्स होंगे, इसलिए कॉम्पैक्शन थोड़ा ज्यादा होता जाएगा। थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ तो क्रोमेटिन कहा। क्रोमेटिन ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा तो क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो मेटाफेज पे आते आते कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं और इसी विजिबल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन विजिबल स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्स अदर नॉन हिस्टोन chromosomal proteins. What does it involve? Non-histone chromosomal proteins. मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट करने के लिए, ज्यादा कंडेंस करते रहने के लिए एक तो चीज है कि हिस्टोन्स चाहिए, पर और ज्यादा कॉम्पैक्ट करने के लिए अलग से प्रोटीन्स भी चाहिए जिन्हें कहा जाता है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जिन्हें कहा जाता है, वो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग क्रोमोसोम फॉर्मेशन। तो इनिशियली डीएनए जो है वो इधर से स्टार्ट हुआ है, राइट। 2 नैनोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, राइट। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाएगा? द डायमेंशंस आर गोइंग टू चेंज। और 2 नैनोमीटर से जब क्रोमोसोम बनता है तो क्रोमोसोम का डायमेंशन 1400 नैनोमीटर होता है। 1400। So imagine how extensively it is getting coiled, right? अब ये जो क्रोमेटिन है वो 2 टाइप का होता है, यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन मतलब अगर ये बीड्स बहुत ही लूजली प्रेजेंट है, तो लूजली प्रेजेंट होगा तो उसका मतलब होगा कि वो लाइटली स्टेन होगा, और जो लाइट स्टेन होता है उसे कहा जाता है यूक्रोमेटिन। और कई बार ये क्रोमेटिन जो है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन, जो डेंसली
स्टेन होता है। तो क्रोमेटिन से आपको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग में क्या चीज याद रखनी है कि बेसिस कितने हैं, 6.6 × 10⁻⁹। दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.34 × 10⁻⁹। अगर हमें टोटल लेंथ डीएनए की जाननी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नियरली लेंथ मिलेगी 2.2 मीटर्स। 2.2 मीटर लंबा डीएनए 10⁻⁶ छोटे डायमेंशन न्यूक्लियस में एडजस्ट करना है तो पैकेजिंग तो चाहिए। प्रोकैरियोट्स में भी पैकेजिंग होती है पर उनके प्रोटीन्स अलग होते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या तो पॉलीअमाइन्स, और उस पैकेज स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहते हैं। पर यूकैरियोट्स में ये यही चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये जो प्रोटीन इन्वॉल्व करते हैं वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं उनमें होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स जिन्हें कहते हैं लाइसिन और अर्जिनिन। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज डीएनए गेट्स कॉइल्ड ओवर पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स। एक बार कॉइल हुआ तो 200 बेस पेयर्स यूज हो गई और एक कॉइल को इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम ऐसे जब बहुत सारे होंगे लाइन में तो इट विल अपीयर लाइक अ बीड्स ऑन द स्ट्रिंग जिसे कहा जाएगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा, राइट, प्रोफेज में जैसे वो एंटर होगा सेल डिवीजन में तो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा। ज्यादा कॉम्पैक्ट को कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पे भी ये रुकता नहीं, अभी मेटाफेज आते आते और कॉम्पैक्शन कंटिन्यू रहता है और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम, राइट। तो डीएनए से ही क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है पर डीएनए का ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम जिसमें प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन के साथ साथ दूसरे भी प्रोटीन्स काम लगते हैं जिन्हें कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC. So that was the topic of the packaging of the DNA. You have to remember over here euchromatin and heterochromatin. Loosely stained or lightly stained chromatin is euchromatin and darkly stained is called heterochromatin. Beads अगर कम होंगे तो euchromatin जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन जब वो कॉम्पैक्ट हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन के लिए एक्टिव नहीं होता।